junction diode, note down, when the p type and n type semiconductors are connected, video भी बन रहा है, रिकॉर्ड भी, when p type and n type semiconductors are connected, electrons are in majority charge carriers in the n type semiconductor and holes are in the majority charge carrier in p type semiconductor. At the junction, hole and electron diffuse from higher concentration to lower concentration. As a result, electron moves towards the hole and hole moves towards the electron towards the n-type semiconductor. At the junction, hole and electron combine and they are neutralized. They are neutralized at the junction and positive immobile ions are left at the n-type semiconductor towards the n-type semiconductor and negative immobile ions are left at the towards the p-type semiconductor. Since the majority charge carrier are completely blocked at the junction, so the region at the junction, it is known as the depletion region. Depletion region or layer, इसको कहते हैं. Since on n side positive immobile ions are formed and on p side negative immobile ions are formed, so here it is the on n side there the positive potential, on p type towards the p type it is the negative potential. As a result, a potential difference is maintained at the junction and this junction behaves as a potential barrier. इसको VB कहते हैं, potential barrier. It is known as the potential barrier. Why it is known as the potential barrier? Because the further movement of the majority charge carriers are completely blocked at the junction. ये हमारा positive immobile ion does not allow the hole to cross the junction. ये hole इधर जाता है जिसको रोक देता है. And negative immobile ion does not allow the electron to cross the junction. As a result, this behaves as a potential barrier. This is depletion region. और इसको हम फिक्सस बैटरी कहते हैं. फिक्सस बैटरी. It is assumed battery. This is not battery, but behave as a battery. So it is known as the Fixus battery. Fixus battery. Now you see this is depletion region. Fixus battery. Depletion region means at the p-n junction, the majority charge carriers are completely blocked. That is, there is no movement of the majority charge carrier at the junction. So this region is known as the depletion region or layer. So this is the p-n junction. तो ये हमारा p-n जंक्शन हो गया. p-n जंक्शन का सिंबल देखो क्या होता है. सिंबल ऑफ द p-n जंक्शन, सिंबल ये होता है p टाइप, n टाइप, और इसको हम एनोड कहते हैं एंड इट इज नोन एज द कैथोड. एनोड एंड कैथोड. पीएन जंक्शन, यही पीएन जंक्शन डायोड हमारे मोबाइल के चार्जर में होता. ध्यान में रखना, चार्जर में ये डायोड यूनी डायरेक्शनल करंट को अलाउ कर देता. करंट एक डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शनल करंट इसमें होती है, एक डायरेक्शन में करंट होती है. तो ऐसा नहीं है कि अगर करंट चली गई तो मोबाइल में चार्ज आया है पूरा चार्ज चला जाता है, ऐसा नहीं होता.
केवल करंट एक डायरेक्शन से ही यूनिफॉर्मली आती है। तो ये हमारा ये पीएन जंक्शन है, ध्यान रखना। अब इसको हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन में वर्किंग कहते हैं। वर्किंग ऑफ द पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस एंड द रिवर्स बायस। वर्किंग ऑफ द पीएन जंक्शन, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन देखना जरा, फॉरवर्ड बायस लिखेंगे। एग्जाम में आया था फॉरवर्ड बायस एंड द रिवर्स बायस, तो देखना जरा, आज बढ़िया से समझ लो। फॉरवर्ड बायस, व्हाट इज द फॉरवर्ड बायस? वी हैव टू सी OS और AS। BIAS, फॉरवर्ड बायस। देखो इसको हम बायस कहते क्यों? फॉरवर्ड बायस, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखना ये फ्रंट पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये तो हमारे पास डिप्रेशन है, जो बहुत पतला हो जाता है यहाँ पे। अप्लाइड बैटरी एंड P-type semiconductor is connected with the positive terminal of battery, and N-type semiconductor is connected with the negative terminal of battery. This is known as the forward bias. When the P-type semiconductor is connected with the positive terminal of the battery, and the N-type semiconductor is connected with the negative terminal of the battery, then this is known as the forward bias. यही है फॉरवर्ड बायस, ध्यान रखना। जब P टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, N टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, then this is known as the forward bias. Is it clear to all? जब हम पॉजिटिव टर्मिनल पे, यहाँ पे P टाइप में होल होता है, ध्यान रखो। P टाइप, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज होल। हियर ऑन N टाइप द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन। What happens here? The positive terminal, try to understand, due to forward bias, what happens? This positive terminal repels the hole, and negative terminal repels the electron. Negative electron को repel करेगा. What will happen? As a result, the hole moves towards the N-type semiconductor, and the electron moves towards the P-type semiconductor. As a result, due to forward bias, the majority charge carrier cross the junction and current flows through the circuit. और इसको हम मिली एम्पियर करंट कहते हैं। मिली एम्पियर में करंट होती है, ध्यान रखना। दिस इज करंट इन द मिली एम्पियर। और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी लगा देते हैं आज, चाहते हो तो स्विच भी लगा सकते हो, यहाँ ऐसे भी ऐसे लगा देते हैं, नहीं भी है तो चलेगा। फ्लो बता दीजिए एक बार। हाँ, अब देखना फॉरवर्ड बायस समझ में आ गया। फॉरवर्ड 3 मार्क्स में आया था फॉरवर्ड बायस। पॉजिटिव टर्म P टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड N टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन दिस इज नोन एज द फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस द जंक्शन। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द पॉजिटिव टर्मिनल रिपेल्स द होल, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, negative terminals repels the electron, so electron and hole moves toward the junction and they cross the junction. As a result, due to movement of the majority charge carriers, current flows through the circuit,
इसको हमेशा मिली एम्पियर ये भी ध्यान रखो, सेमीकंडक्टर में आर्टिफिशियली जनरेट किया गया होल और इलेक्ट्रॉन, इस नाते वह कभी इस कंडक्टर के बराबर नहीं हो सकता करंट मिली एम्पियर में, लेकिन यही मिली एम्पियर के नाते यह गर्म नहीं होता। इसीलिए कंप्यूटर हमारा 24 आवर ऑपरेट होता है, मोबाइल हमेशा इतना चलता है, टेलीविज़न हमेशा चलता रहता है, अगर हीटर चला दो उतना देर तो गर्म हो जाता है, डिवाइसेस है ना। तो यहाँ पे कम करंट की ज़रूरत पड़ती है, कम करंट के कारण। अच्छा, इसमें जो रेसिस्टेंस होता है वह फॉरवर्ड और रिवर्स के कारण होता है, इस नाते ये रेसिस्टेंस भी उतना इफेक्टिव नहीं होता। इसी नाते ये सेमीकंडक्टर की जो डिवाइसेस हैं ये जल्दी गर्म नहीं होती। मोबाइल में पीएन जंक्शन होता है, ट्रांजिस्टर होता है, एन पी एन ट्रांजिस्टर, एन को पी, ये दो एन टाइप एक पी टाइप मिला देते हैं तो एन पी एन होता है। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर प्लस रेसिस्टर। अभी ट्रांजिस्टर फिलहाल हटा दिया गया है फिलहाल सिलेबस से, लेकिन मार्केट में जो सबसे ज़्यादा यूजफुल हो एन पी एन ट्रांजिस्टर है, एन पी एन पी एन पी। एन पी एन पी ट्रांजिस्टर प्रैक्टिकल में दिखाए थे एक्टिविटी में कि ट्रांजिस्टर तो 3 इलेक्ट्रोड का था ना, तो एक्टिविटी में दिखा दिए थे ट्रांजिस्टर। वो ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांसफर प्लस रेसिस्टर, मतलब ऐसी डिवाइस जो करंट, वोल्टेज और पावर को ट्रांसफर करती है थ्रू द रेसिस्टर, दैट इज नोन एज द ट्रांजिस्टर। उसको खैर आगे पढ़ेंगे, पहले हमें देखना है फॉरवर्ड बायस। सिंस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस द जंक्शन सो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, और करंट मिली एम्पियर में होती। ये तो इस फॉर्म में हुआ, इसको हम सर्किट डायग्राम के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो अभी हमने देखा कि सिंबल यही है इधर, फिर सर्किट फॉर्म है ये पीएन, हाँ इसको पीएन है, देख लेना। मतलब इस पूरे इतने को हमने सिंबल में इतना लिख दिया, ठीक, ये पीएन हो गया, ध्यान रखना पीएन। और ये हमारे पास ये हमारा रेसिस्टेंस है, पी है, और मिली एम्पियर में है, मतलब उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? स्विच जरूरी नहीं है, हाँ स्विच नहीं लगाएंगे तब भी। हाँ, स्विच की जरूरत नहीं, ठीक है मतलब एग्जाम में यही बना देगा तो चल जाएगा। हाँ, एग्जाम में यही चलेगा। फॉरवर्ड बायस में दिखाना पड़ेगा सर पहले आवाज में बोलो। पहले प्रोजेक्ट सबमिट करा फिर वापस मांग रहा है। पहले सामने मत बोला तुम। ये हमारा फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखो, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। इन फॉरवर्ड बायस लिख दो, इन फॉरवर्ड बायस यस सर, the majority charge carrier cross the junction, तो ये फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो बोल दीजिए। इन फॉरवर्ड बायस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस द जंक्शन सो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में ये अप्लाइड वोल्टेज इधर है और ये वोल्टेज VB इधर होता है, ध्यान में रखना। तो नेट वोल्टेज तो बैरियर, तो नेट वोल्टेज एट द जंक्शन इज V माइनस VB, ध्यान में रखना। अप्लाइड वोल्टेज हमारा V है और इन जो है बैरियर वोल्टेज VB है। तो नेट वोल्टेज एट द जंक्शन इज V माइनस VB, नेट वोल्टेज। थर्ड पॉइंट भी लिख लेना, सेकंड लिख लेना, थर्ड पॉइंट लिखना। सेकंड क्या था सर? The net voltage at the junction it is equal to V minus VB, V minus
VB। एंड थर्ड पॉइंट लिख लेना, इन फॉरवर्ड बायस डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेज, डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेज। क्योंकि रिपेल करता है पॉजिटिव उसको। अभी जब आएंगे तो मजाकी चाप करीब आ जाएंगे, डिप्लेशन रीजन बहुत कम हो जाएगा ना, तो इन फॉरवर्ड बायस डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेज। फॉरवर्ड बायस सबको समझ में आया? यस सर। नाउ द रिवर्स बायस, अभी एग्जाम में यही फॉरवर्ड बायस आया था, अभी जो जस्ट एग्जाम था इसी में फॉरवर्ड बायस था, यही करना सर नेक्स्ट में भी आएगा ना? था, रिवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा। हाँ 3 नंबर पर पेपर आउट हो गया है। आवाज रिकॉर्डिंग भी रिवर्स बायस, reverse bias. Here you see what is the reverse bias. If the negative terminal of the battery is connected N type, here you see, draw the diagram at first. N type semiconductor, here P and N. P type is connected to the negative terminal and N type is connected to the positive terminal. Draw the diagram. When p-type semiconductor is connected to the negative terminal of the battery, when p-type of semiconductor is connected with the negative terminal of the battery, and the n-type semiconductor is connected with the positive terminal of the battery, then this is known as the reverse biased. Clear? Then this is known as the reverse bias. अगर इन निगेटिव टर्मिनल को उसको लगा here PN junction, negative terminal connected to P type and positive terminal connected to N type semiconductor, this is known as the reverse bias. Reverse bias समझ में आ रहा है? Yes sir. Now what happens in the reverse bias, you have to see the negative terminal attracts the hole towards P side and positive terminal attracts the electron towards N side. What happens result? The depletion region increases. This is depletion region increases. And here the net potential at the junction, you see this barrier potential is this, applied potential it is this is V and this is VB. Is it clear to all? Barrier potential and the applied potential both are in same direction, so the net potential at the junction is V plus VB. Is it clear? इट मीन्स बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब चार्ज कैरियर पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं। माइनॉरिटी चार्ज मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर कंप्लीटली ब्लॉक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दे आर कंप्लीटली ब्लॉक। लेकिन हमने बताया था कि हर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में कुछ होल होते हैं, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन और कुछ इलेक्ट्रॉन टाइप में कुछ होल होते हैं, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। तो रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैन क्रॉस द जंक्शन। क्यों? क्योंकि इसको सपोर्ट मिलता है, ये निगेटिव है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींच लेता है, और ये होल है, इसको निगेटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींचता है। इस करंट को रिवर्स करंट और लीकेज करंट कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। सर इसमें पास
माइनॉरिटी, मेजॉरिटी नहीं, केवल माइनॉरिटी। सर क्या होता है उसमें सर? नोट करो पहले। इन रिवर्स बायस, in reverse bias the majority charge carriers are completely blocked. In reverse bias majority charge carriers are completely blocked, so there is no current, in the circuit due to the majority charge carrier. So there is no current in the circuit due to the majority charge carriers. Majority charge carriers का कोई करंट नहीं होती। सेकंड पॉइंट लिखना, the minority charge carriers can cross easily at the junction, so current in the circuit is negligible, that can be measured in the microampere, ये देख लेना, वहां मिली एम्पियर था ना, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर, मतलब करंट नेग्लेजिबल होती है, माइक्रो एम्पियर। द बैरियर पोटेंशियल एट द जंक्शन इंक्रीजेज, थर्ड पॉइंट लिखना, बैरियर पोटेंशियल at the junction increases, here the barrier potential at the junction increases. Net potential at the junction is V plus VB. Is it clear to all? Net potential at the junction is V plus VB. Here you see, जंक्शन पर नेट पोटेंशियल बढ़ जाता, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल सपोर्ट करता है किसको, बैरियर पोटेंशियल को, तो नेट पोटेंशियल। तो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि majority charge carriers are blocked but the minority charge carriers are allowed to cross the junction। इस करंट को रिवर्स करंट और लीकेज करंट कहते हैं, ध्यान में रखना। द करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द रिवर्स बायस इज नोन एज द रिवर्स करंट और लीकेज करंट। द करंट इन द रिवर्स बायस, due to the minority charge carriers are known as the leakage current or reverse current or leakage current. Is it clear to all? Or that is measured in microampere. ये हमारा करेक्ट फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्लियर टू ऑल। तो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, इसका देखना डायग्राम देखना जरा, सर्किट डायग्राम देखेंगे तो व्हाट हैपेंस हियर, इट इज पीएन। सर दैट वन वाज सर रिवर्स करंट ना, रिवर्स करंट और लीकेज करंट। देखना ये पीएन जंक्शन, पी एंड एन, यहाँ पे रिवर्स करंट, इसको माइक्रो एम्पियर ले लेते हैं। रेजिस्टर नहीं लगता है।
रेसिस्टर उसको नेग्लेजिबल करंट होती है, लेकिन छोटा लगा लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लगा लेते हैं। बैटरी उल्टी हो गई, वही है ना, उसको बड़ा कर दो। नेगेटिव पहले। इज इट क्लियर? It is the circuit. Clear? This is forward bias and the reverse bias. तो अब इस पीएन जंक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज है, पूछता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरवर्ड बायस एंड द रिवर्स बायस। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस। VI characteristics of forward bias. हाँ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो अच्छा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आई मैंने वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, TRISTICS इन फॉरवर्ड बायस। इज इट क्लियर? अब वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, तो देखना, इसके लिए एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये देख लेना, ये पीएन स्ट्रेट लगा देते हैं यहाँ पे। इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ड्रा द सर्किट डायग्राम। ये हमारे पास पीएन जंक्शन है, रेस्टेट है, बैटरी है फॉरवर्ड बायस में, और ये मिली एम्पियर में करंट मेजर कर लेते हैं। ये डायग्राम बनाओ, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स बना लीजिए। Draw the graph here. It is V, it is I, मिली एम्पियर में ध्यान में रखें। वी आई कैरेक्टरिस्टिक जब भी आएगा 3 मार्क्स में। पीएन जंक्शन वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फॉरवर्ड बायस। सर इतना चाहिए सर? हाँ, इतना चाहिए। देख लो, इन फॉरवर्ड बायस, अब इसमें लिखना होगा ग्राफ बनाने के बाद। फर्स्ट पॉइंट, इन फॉरवर्ड बायस, in forward bias, if the applied voltage in forward bias, if the applied voltage is less than the barrier voltage, in forward bias, if the applied voltage is less than the barrier voltage, then the current in the circuit is zero. Then the current in the circuit is zero in forward bias,
when the applied voltage is less than the barrier voltage, then the current in the circuit is zero. Is it clear? Barrier voltage 1. वही बैरियर वोल्टेज है, 1 से कम होता है सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, ध्यान रखना। ये पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखना, if the applied voltage exceeds the barrier voltage, if the applied voltage exceeds the barrier voltage, Sir, exceeds. If the applied voltage exceeds the barrier voltage, then the current starts increasing rapidly. Then the current starts increasing rapidly. Clear? Then the current starts increasing rapidly. The potential at which, note down, third point लिख लो, the potential at which the current starts increasing rapidly is known as the cut-in voltage or threshold voltage. The potential at which the current starts increasing rapidly, the voltage at which the current starts increasing rapidly is known as the cut-in voltage or threshold voltage. ध्यान रखना, cut-in voltage, Cutting या cut in? cut-in voltage or threshold voltage. Threshold voltage, is it clear to all? Cut-in voltage or threshold voltage, is it clear? So cut-in voltage or threshold voltage. VI characteristics This is the VI characteristics, is it clear? for forward. The resistance in VI characteristics is known as the dynamic resistance, क्योंकि resistance इसका variable होता है। The resistance in the, note कर लो, the resistance VI characteristics. in the VI characteristics is known as the, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे डेल्टा V, डेल्टा I, तो हमारे पास जो डायनामिक रेसिस्टेंस RD कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं, IT इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, इसको डायनामिक रेसिस्टेंस, डायनामिक मतलब मूवमेंट में हो, चेंज हो रहा हो, Sir, वो कैपिटल आ रहा है स्मॉल आर शो किया जाता सिंबल RD, डायनामिक रेसिस्टेंस। The resistance in the forward bias, it is known as the dynamic resistance. Is it clear to all? Yes, sir. Forward bias characteristics, forward bias, reverse bias. The three topics all are very important for your exam. Others.